children, this is Karan sir, and today we are going to start the very new chapter of class 8, that is Political Science or Civics, chapter 1, the Constitution of India. So, this means this video is going to be for the class 8 students. Social study, the first chapter of civics, that is the Constitution of India. Open your book on the page number 231. So there is a small story given here. In a society, there was a dispute between the neighbors regarding to the parking area. So we will start the chapter on page number 232. Please go to the page number. Now, today we are going to start this chapter. I hope you all are well and safe with your family. As the COVID situation is going out of control, the number of cases increasing day by day. In our locality also, some of the cases are noticed. So please be safe, try to stay home, stay safe. Today, this chapter, what is the Constitution? Constitution means a set of laws according to what a country is governed is known as Constitution. Got my point? So India's Constitution is one of the biggest written constitution in the world. So this chapter starts from here, need for laws. It means somebody may ask, what is the need of the laws? Why do we need a law? The comic strip above illustrates that the most of the everyday situation requires some rules. These rules have to be made so that each member of the society behaves in a manner that is not offensive to others. Why the laws are required? What is the need of the laws? The laws are required for the better and smooth functioning of any organization, any country, any state or any society. If there are no rules or laws in the family also, there will be a lot of disputes, disagreements, where the people will have a lot of arguments and discussions. It means without any law, human beings cannot lead their lives smoothly and peacefully. So we need a specific law to perform a specific duty. In our families also, that some people of your family or one person of your family is assigned to a different job, a different work is given to him or her. Suppose that in your family your mama cooks food, your father's responsibility is to earn bread and butter for the family. Your responsibility is to give your proper time and effort to your studies. Similarly, जिस प्रकार से एक परिवार के सभी लोगों को एक या अथवा दूसरी जिम्मेवारी दी जाती है, परिवार एक नियम के अंतर्गत चलता है, एक नियम की जरूरत सभी को है। यदि मनुष्य अपने जीवन को बिना नियम के, बिना कायदे के, बिना कानून के अगर जिएगा तो जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाएगी। किसी भी काम को समय पर कर पाना उसके लिए कठिन हो जाएगा और किसी प्रकार की सफलता उसके पास नहीं मिल सकती। Thus, the rule is an established principle or the guide for action. Following rules and regulations make life disciplined. नियम, कायदे, कानून हमारे जीवन को अनुशासित बनाने के लिए होते हैं, जिसमें कि अगर नियम है, परिवार में सभी लोग रात को 9 बजे तक भोजन कर सो जाएंगे, तभी तो सब कल सुबह उठ पाएंगे। परिवार में अगर कोई नियम ना हो, सभी लोग सुबह उठे नहीं, कोई 12 बजे उठे दिन में, कोई 3 बजे शाम को उठे, कोई 4 बजे उठे, किसी का नाश्ता शाम को 4 बजे हो, कोई लंच ले रहा है रात को 8 बजे, इसका कोई मतलब नहीं। इस तरह से मनुष्य का जीवन पशु की तरह हो जाएगा। पशु भी अपनी जीवन दिनचर्या में कुछ नियमों का पालन करते हैं। जंगल के पशु भी कुछ न कुछ रूल्स फॉलो करते हैं।
For example, while driving or walking on the road, we follow certain traffic rules. Ignoring traffic rules can lead to the accident. Similarly, nations are also governed according to the certain rules known as a law of the country. यदि हम सड़क पर चलते हुए अगर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करें तो हम किसी भी वक्त दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। हमें अपने सड़क की बाईं ओर से चलना है। यदि हम दाईं ओर से चलेंगे तो एक्सीडेंट यानी दुर्घटनाएं होने की संभावना अधिक रहेगी। जिस प्रकार से सड़क पर चलते हुए सड़क के ट्रैफिक यातायात के नियमों का पालन करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से देश को चलाने के लिए देश भी एक कायदे कानून और संविधान के हिसाब से चलता है। इसी तरह के जो कानून बनाए जाते हैं देश में उसे हम लॉ ऑफ द लैंड या लॉ ऑफ द कंट्री कहते हैं। The purpose of having these laws is to avoid situation of anarchy and at the same time ensure justice for all. Laws are created as and when they are needed by the society. देश में संविधान नियम कायदे कानून की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि समाज में सभी लोग सुख चैन से जी पाए, अमन भाईचारे की बहाली हो सके, सभी लोग शांति से अपने जीवन को जी सकें और किसी तरह की जो अनार्की वाली सिचुएशन यहां पे पेश ना हो। मान लिया जाए कि देश में कोई नियम कायदा कानून नहीं रहेगा, किसी भी अपराध के लिए कोई सजा ना हो, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई आता है आपको मार के चला जाएगा, nobody will take care, nobody will get afraid of the law। किसी को इस बात का भय नहीं रहेगा कि आपको मारने का परिणाम क्या हो। आज किसी से आप झगड़ा यदि करते हैं या किसी से आप मारामारी करते हैं, आपके मन में यह भय होता है कहीं ये व्यक्ति जाकर पुलिस स्टेशन में मेरी शिकायत करेगा तो मुझे कानूनी पचड़े में फंसना पड़ेगा। इस भय से लोग ज्यादा उलझते नहीं, पंगे नहीं करते। अगर नियम कायदे कानून ना हो, देश में पुलिस स्टेशन ना हो, न्याय व्यवस्था ना हो, न्यायालय ना हो, न्यायाधीश ना हो, कोर्ट्स ना हो, अदालतें ना हो, सजाएं ना हो, तो चारों तरफ लाइफ में पंगे ही पंगे होंगे। साधारण छोटी छोटी बात के लिए लोग एक दूसरे का मर्यादा हनन करेंगे, मार डालेंगे, अपराध, चोरी, मर्डर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इन्हीं चीजों, इन्हीं परिस्थितियों से बचने के लिए देश में कायदे कानून, नियम, संविधान, न्याय, न्यायालय, न्यायाधीश आदि की व्यवस्था की गई है। यहां पे हम एक लॉ के बारे में चर्चा करेंगे, दैट इज डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। दहेज उन्मूलन प्रथा या दहेज के रोकथाम के लिए बनाया गया कानून 1961 में बना था। द प्रैक्टिस ऑफ द पेमेंट एंड द एक्सेप्टेंस ऑफ डॉरी हैज एग्जिस्टेड इन आवर कंट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। हमारे समाज में, हमारे गांवों में, हमारे देश में हम देखते हैं जहां लड़कियों की शादी होती है तो एक मोटी रकम लड़के वालों को दिया जाता है दहेज के नाम पर। लड़के अपनी अपनी योग्यता और काबिलियत के हिसाब से अपने लिए दहेज की रकम तय करते हैं। लड़के वाले अपने बेटों की शादियों में लड़की के पिता से विवाह से पहले एक मोटी रकम की मांग करते हैं। इस प्रथा को, इस कुरीति को दहेज प्रथा का नाम दिया जाता है, जो कि हमारे देश में कानूनन अपराध है। इसके लिए दहेज के रोकथाम की जो कानून है ये बनाया गया था 1961 में, 1961 में। आज जिस बाप की 3-4 बेटियां हों उसका सर इस बात की चिंता से फटा रहता है कि कैसे मैं 3-4 लड़कियों की शादी कराऊं। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में ये दहेज नाम की कुप्रथा अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा चुका है कि आज कोई भी लड़का वाला बगैर पैसों की शादी नहीं करना चाहता। Earlier at the time of marriage, parents gave their daughters dowry in the form of gifts. शुरुआती दौर में दहेज प्रथा की शुरुआत कहां से हुई? शुरुआती दौर में बेटियों की शादी में माता पिता अपने संचित धन में से कुछ वस्तुएं उपहार के तौर पर अपनी लड़की को ससुराल जाते वक्त देते थे। It was a voluntary act and this dowry was seen as the bride's own property. ये प्रथा शुरुआत में उपहार के तौर पर चलती थी। अपनी पुत्री को पिता अपने पुत्री के विवाह पर उसे उपहार स्वरूप कुछ धन
वस्तुएं दिया करते थे। ओवर द सेंचुरीज डॉरी बिकेम एन ऑब्लिगेशन। बाद में चल करके ये पहले था स्वैच्छिक था, पिता की मर्जी हो तो दे सकता है, परंतु अब स्वैच्छिक नहीं रहा। अब यह एक ऑब्लिगेशन, बाध्यता बन चुकी है, जिसमें हर लड़की के पिता को अपनी लड़की का विवाह कराते वक्त विवाह से पहले तय की गई या लड़के वालों द्वारा मांगी गई राशि देनी पड़ती है, अन्यथा विवाह बाधित हो जाता है, नहीं होता, रद्द हो जाती है शादी। If a bride failed to bring dowry, she was humiliated and even tortured in certain cases by her in-laws. कुछ मामले ऐसे भी देखे गए हैं जहां पे लड़की वाले ने यदि दहेज में कुछ कम सामान, कुछ कम पैसे दे दिए तो लड़की को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उसे टॉर्चर किया जाता है उनके ससुराल वालों के द्वारा। Many brides were tortured and in some instances even murdered by their in-laws if the family of the bride was unable to fulfill the expectations of the in-laws. Even in present time, dowry-related crime continue to be reported. कई मामले तो ऐसे भी देखे गए हैं जहां पे लड़कियों द्वारा लड़के वालों द्वारा मांगी गई राशि या पर्याप्त धन नहीं लाए जाने के कारण उसे टॉर्चर किया गया, उनको उनके ससुराल वालों द्वारा मौत के घाट तक उतार दिया जाता है। और इस प्रकार की कुप्रथाएं आज भी हमारे देश में चल रही हैं। आज भी हमारे आसपास के इलाके में हम देखेंगे थानों में डॉरी यानी दहेज से जुड़े हुए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। The Dowry Prohibition Act was passed in 1961 to prohibit the demanding, giving and taking of dowry. Dowry, as described by the Dowry Prohibition Act, is the demand of the property by the groom's relative from the bride's parents. Dowry क्या है? दुल्हन के घर वालों से जब दूल्हे के घर वाले किसी प्रकार के पैसे की मांग करते हैं, किसी सामान की मांग करते हैं, गाड़ी बंगला कुछ मांगते हैं, ये दहेज की श्रेणी में आता है। लड़की के पिता से लड़के के पिता द्वारा मांगे जाने वाला जो भी चीज है, धन हो, वस्तुएं हो, ये सब दहेज की श्रेणी में आते हैं। और इसके लिए बनाया गया था कि ये कानून बना है, लेना और देना दोनों ही जुर्म माना जाएगा। अगर आप दहेज देते हैं तो भी क्राइम है, लेते हैं तो भी क्राइम है। यदि आपको कोई फोर्सफुली दहेज मांगता है और इस बात की जानकारी आप थाने में देंगे तो लड़के वाले लड़के के साथ जेल जाएंगे। An amendment was made to the Act of 61 in 81. 1961 में बनाए गए कानून में एक संशोधन किया गया 1981 में, which made payment of the acceptance of dowry is a punishable offense. इसको एक सजायाफ्ता अपराध माना गया, इसे एक पनिशेबल ऑफेंस कहा गया, जिसमें कि सजा हो सकती हो, उसे पनिशेबल ऑफेंस कहते हैं। The act was further amended in 1986. People who are convinced under this law can face up to the 5 years of imprisonment. They can also find up to the 15,000 rupees or the amount of the value such as dowry, whichever is more. इसमें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति के रिश्तेदारों को 5 वर्ष तक की सजा या 15,000 रुपए का जुर्माना या दहेज में तय की गई राशि को जुर्माने के रूप में वसूला जाएगा। रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन सभी बातों में संविधान का रोल क्या होता है, उसकी भूमिका क्या होती है, संविधान की भूमिका क्या है। Various situations require some rules of laws and are acceptable to all. In any country, these basic rules, which safeguard the interests of the diverse groups of the people, are laid down in the form of the Constitution, which may be written or unwritten. The Constitution of a country is thus a set of rules according to which it is governed. क्या होता है, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती है जहां पे किसी न किसी मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है, और ऐसे ही मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है हमारा संविधान। संविधान क्या है? लिखित नियम, कायदे, कानून की वह किताब जिसके अनुसार एक देश चलेगा, उसे ही हम संविधान के नाम से जानते हैं। It is the supreme law of this country and the legislation of the state must be accordance of the principles laid down in the Constitution. जिस भी प्रकार की किसी को कोई आपत्ति दर्ज करनी हो, वो संविधान में वर्णित, संविधान में
उल्लेखित बातों के आधार पर ही की जा सकती है। और संविधान किसी भी देश का सुप्रीम लॉ होता है, सर्वोपरि नियम कायदे की किताब होती है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज देयरफॉर नीडेड बिकॉज इट, कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है? ये निम्नलिखित कारण है जिसकी वजह से चाहिए। Describes not only the type of government that the people desire but also the ideals that the country upholds. ये सिर्फ वही नहीं बताता कि किस प्रकार की सरकार लोग चाहते हैं, बल्कि किस तरह से हमारे देश के आदर्शों को ऊंचा उठाए रखा जा सकता है, उस बातों की चर्चा करता है। Defines the nature of the country political system, किस तरह से देश चलेगा, देश क्या एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र रहेगा या किसी पंथ प्रधान का देश रहेगा। पॉलिटिकल सिस्टम को भी डिफाइन करता है, किस तरह की राजनीतिक व्यवस्था यहाँ रहने वाली है, डेमोक्रेटिक होगा, मोनार्की होगा और डिक्टेटरशिप होगी यहाँ पे। Prevents the misuse of the power in the hands of the political leaders by laying down rules to check their powers. सरकारें जो सत्ताधीन सरकारें हैं, सत्ता में आए हुई जो सरकार है, सत्ता के जो लोग हैं, ये अपने शक्तियों का दुरुपयोग ना करें, इसके लिए भी उनकी सीमाएं तय की गई हैं कि इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते। Prevent the dominance of a majority group over a minority group, किसी देश में जो बहुसंख्यकों की तादाद होती है, जिस संख्या में जिस ग्रुप के लोग ज्यादा होते हैं, वो माइनॉरिटीज पर किसी प्रकार का जुल्म ना कर सके, उन्हें दबाए नहीं, उन्हें शोषित ना करें, शोषण ना करें उनका, इस बात का भी उसमें वर्णन किया गया है। Guarantees and protects the rights of the citizen, हर एक नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है तथा उन्हें उपलब्ध कराता है। Rule of the law, rule of law. The framers of the Constitution of India has realized that the rule of law must always prevail in order to help India occupy a credible position in democratic country. एक लोकतांत्रिक देश के रूप में भारत की जो छवि हमेशा अच्छी बनी रहे, इसके लिए इस बात का ध्यान रखा गया। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है। In its most basic form, it means that no one is above the law. It means the Constitution, according to the Constitution, nobody in India is above the law. Nobody has the right to break the law. Rule of law demands that the people occupying position in different organs of the state and holding power should be guided by the law and not to be allowed to act in an arbitrary and unlawful manner. The citizens should be protected by law and enjoy equal rights as well as the discharge equal responsibilities. This measure was adopted to guard against the abuse of power and evolve a democratic structure of power relationship. किसी भी प्रकार की जो सत्ताधीन पार्टियां हैं, सत्ता में जो सरकारें हैं, वो अन्याय ना करें, लोगों के प्रति किसी प्रकार का जुल्म ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया। उनके लिए लाइन्स तय की गई है। साथ ही साथ हर नागरिक अपने दायित्वों तथा अपने कर जो उनका जो फर्ज है, जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य है, उसका निर्वहन समानता से करें। This measure was adopted to guard against the abuse of the power. कोई भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके किसी के साथ गलत ना कर सके, इस बात को रोकने के लिए इस चीज का व्यवस्था इस चीज की गई थी हमारे संविधान में। Today we are going to leave this chapter here only, and I request all the students of class 8 to note down 5 internal questions from this part of the chapter till I taught you today. आज के पढ़ाए गए पाठ में से आपको कुछ 5 इंटरनल क्वेश्चंस तैयार करने हैं, जिसके आंसर्स भी खुद लिखने हैं। इसको आप रफ कॉपी में लिखेंगे, फेयर कॉपी में नहीं लिखेंगे। Send it in the group between 6 o'clock to 7 o'clock in the evening. Thank you. Have a nice day.